Okay, so now we are going to start a mock interview for our student Archit Goyal, and this interview is for ONGC. So, Mr. Archit, first of all, you tell us about yourself. Sir, my name is Archit Goyal. I am born and brought up in Delhi itself. I did my schooling from DAV Public School. In my school days, I guess something has erupted. Sir, in my school days, I was part of the voices. Sir, is it okay? Yes, Archit. Sir, in my school days, I participated in athletics and kho and I represented my school in DAV National. Right now, I'm in my final year of graduation in environmental engineering from Delhi Technological University. And in my college days, I did two internships. First one is as a research intern in ONGO, and which is accredited with the United Nations, and one engineering trainee as in Delhi Jal Board. Other than academics, I also participated in athletics in my college days and keep myself regularly fit. My hobbies lies in spirituality, reading about self-improvement books and gardening. Okay, so Archit, first of all, you tell me Yes, why sir. did you choose this discipline? This Sir, is not very popular. yes, sir. Yes, sir. Sir, let me tell you that when I was given opportunities in various fields, then I looked upon some opportunities that maybe in future that maybe have a lot of scope. And also, when I was seeing that environmental adversaries are also increasing and global warming is increasing day by day, it becomes the responsibility for me because it is directly impacting the life of common man. Okay, so now after completing your BTech, what are career opportunities available for you? Sir, right now जैसे कि मैं final year में हूँ, so I have this opportunity to appear in this GATE examination and get an assistant environmental engineering post in ONGC and like other organization. Just like I got placed in Vedanta Resources Limited on campus placement, and there are a lot of other opportunities in research background. So why do you want to join especially ONGC now? If you already have been selected in Vedanta? Sir, ONGC is largest producing company in India, and it is also well known for its employee reward mechanism and other policies that are favorable to the employees and their families. It is considered as one of the best PSUs, which takes care of its employees not in the monetary purpose but also overall development of it. For example, recently ONGC has uh, achieved this achievement of best PSU in promoting sportsmanship. Recently, it has been rewarded for that. And other than that, ONGC is government job, and that added to the security of my and my family. Okay, so industry and environmental engineer. Yes, sir. Okay, so two things run in parallel. One is a person or factory or organization creating or harming the environment, creating problems or harming the environment. And second, people who work for the protection of environment. So voice, so So your you are voice in is which lagging. category? So your voice is lagging. 1 second, sir. Okay. अभी clear है? Yes, sir. Yes, sir. Archit, are you getting my voice now? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो Yes. अर्चित ये बताओ कि एक तो वो है जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हुई, प्लांट्स हुए, फैक्ट्रीज हुई। एक वो लोग हैं जो उसके प्रोडक्शन के लिए लड़ाई करते हैं। तो आप अपने आप को कहाँ पे पाते हो? सर, एक तो जो इम्पैक्ट करते हैं एडवर्सली, एंड सेकंड वन जो उसके प्रोडक्शन के लिए फाइट करते हैं, जैसे एक्टिविस्ट होते हैं ना,
environmental okay. protection activist भी होते Okay, हैं। okay. तो So you आप mean, किस साइड में inclined है? sir, I would say both are extremist approach, and I would rather follow the balanced approach on the lines of sustainable development, any development which takes place without harming the environment. So extremist activist says that you don't need to build a dam. I'm taking an example. Activist says that you don't need to build a dam in that region because it will create a mess in that region and adversary for the environment. But other than that, we also need to see that there are a lot of economic opportunities linked with that. In the government perspective it is different, in the individual perspective it is just different, and we need to follow the balanced approach and need to hear all the stakeholders involved. Okay. So now tell me about your strengths. What strengths you feel in yourself? So, my major strength is that before execution of anything, I would rather make a plan. I am compassionate about others, and I learn quickly, and I accept my mistakes and learn from those. And what are your weakness? So my weakness is that I'm weak in rote learning. Like I don't remember facts for the longer run. For that matter, I keep on revising those facts, and then they are imbibed in my brain. Okay. And now tell me, what is your long-term career objective? After a long journey, where do you see yourself? Sir, to continuously acquire knowledge in environment and then to see myself as an inspiration in an environmental sector. Lot of aspirants should see me as a person who is following sustainable path, along with that developed so much. Okay. And what about your hobbies? So my hobbies lies in listening to music regularly, exercising, and keep myself updated with current affairs, and also I listen to the songs of gym workout. Okay. So recently in Bengaluru, there was Energy India Week, Yes, sir. Yes, sir. So what did ONGC represent there? Sir, ONGC, I just saw this on the website of ONGC. It was a meeting held in that, and I'm not able to recall. Sorry, sir. Okay. I will read about it, sir. Jatin sir, unmute. Good afternoon, sir. Hello, sir. A very good afternoon, Archit. So, you have done BTech in environmental engineering. Sir, I am not done. I am pursuing it. I'm in my final year. Okay. That's Yes, good. sir. So, first of all, it's very. I'm very happy to hear that you have selected in IOCL interview. Thank ONGC, you, sorry, sir. ONGC Thank you, sir. interview. So, Archit, tell me, do you know what population forecasting? No? We Proper. forecast population. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So tell me, if we have a young city, okay, Mhm. young city, so which method would you prefer for forecasting population? So I don't remember it, but if I say so, it would be a geometric method. Okay, geometric method. Can you tell me what's the formula for geometric method? Sir, I'll read about it, sir. Okay. No problem. Okay, Archit, tell me about something that carbonate hardness. We have non-carbonate hardness. Hardness is of two types. Yes, sir. Carbonate, Yes. non-carbonate Yes. hardnesses. We perform test. We perform test for alkalinity. We perform test also for hardness. Yes, sir. But Yes. how will we come to know that there's a carbonate hardness or non-carbonate hardness? I want to know that how will we differentiate that in this sample there's a carbonate hardness
and there is a non-carbonated hardness in terms of CaCO3, obviously, how will we differentiate it? Sir, basically we test both the alkalinity and carbonated hardness. Not carbonated hardness, but total hardness. And if anything which is lesser, then we'll consider it equivalent to carbonated hardness. And for non-carbonated hardness, we'll subtract it total hardness minus carbonated hardness equivalent to non-carbonated hardness. Okay. So can you tell me why we express in terms of CaCO3? Because milliequivalents per liter of CaCO3, it is easily calculated. Easily calculated. Okay. Any more reason? Any more reason is that it becomes a standard for all the alkalinity types. Okay. Okay. So tell me about aquifer, aquiclude, basic properties. Aquifer basic properties बताइए मेरे को. Aquifer की basic properties क्या होती है? सर एक्वीफर की बेसिक प्रॉपर्टी है कि उसमें पानी होता है, बट एंड वी कैन आल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट. एक्वीक्लूड की होती है कि उसमें पानी होता है, बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट. ओके. तो एक्वीक्लूड से तुम पानी को विड्रॉ कर सकते हो, एक्वीक्लूड से पानी को विड्रॉ नहीं कर सकते हो. एक्वीफर से आप विड्रॉ कर सकते हो. ऐसा क्या होता है एक्वीफर में? ऐसा क्या होता है एक्वीफर में कि हम पानी को विड्रॉ कर पा रहे हैं? सर पोरस होता है रॉक्स. ओके. अगर रॉक्स हमारी पोरस होगी तो हम पानी को विड्रॉ कर सकते हैं. यस सर. ओके. सो अर्चित, ग्रेवल आर मोर पोरस और क्ले आर मोर पोरस? व्हाट सर? ग्रेवल की पोरोसिटी ज्यादा होती है, क्ले की पोरोसिटी ज्यादा होती है? सर ग्रेवल्स की. ग्रेवल की पोरोसिटी ज्यादा होती है. यस सर. ओके. पोरस, मेरे को पोरस समझाओ अर्चित कि पोरस से हम समझते क्या है? सर इट इज द स्पेस बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स. लाइक ग्रेवल्स में अगर पोरोसिटी ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि उसके साइज पार्टिकल्स ज्यादा बड़े हैं. तो उनके जब साइज पार्टिकल्स ज्यादा बड़े होते हैं तो उनके बीच का स्पेस भी ज्यादा हो जाता है. तो दैट इज पोरोसिटी. द स्पेस बिटवीन स्पेस और voids between the solid particles. So means you are saying that अगर particle size is more, then the size of void is also more. Absolutely correct. And you are also saying that the gravel is more porous as the size of particle is more. Okay. Have you studied about the term permeability? So yes sir. Hydraulic conductivity? Hydraulic conductivity, yes Tell me sir. about that. We perform. Yeah, tell me about that. Tell me about that. What is hydraulic conductivity? Sir, hydraulic conductivity is there are sir. Sorry sir. Ram. Okay. Archit, there are the different type of aquifer. Just tell me the name of that aquifers. Different names of aquifers. Yeah. I don't know, sir. Okay. So, अर्चित, अभी आपसे रोहित विक्रम सर बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको फीडबैक देता हूँ. ओके ओके विक्रम सर. Yes, Archit. Good afternoon, sir. Yes, Archit. How are you? I'm okay, sir. आपका इंटरव्यू किस पोस्ट के लिए? Sir, AWE, Assistant Environmental Engineer. Assistant Environmental Engineer. Right? Executive Engineers. Why you said environment? बीटेक इन्वायरमेंट में कर रहे हो, इसलिए इन्वायरमेंट ही ध्यान में रह गया. अच्छा ठीक है. किस पोस्ट के लिए बेसिकली है? सर एनवायरमेंटल इंजीनियर की. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का ये इंटरव्यू है, राइट?
Yes, sir. ठीक है, ONGC ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Mhm. ठीक है। आप कभी क्ले देखे हो हर चीज जिंदगी में? Sir, क्या? क्ले देखे हो, क्ले सॉइल? Clay soil? हम्म। Yes, sir. ग्रेवल भी देखे होंगे। Yes, sir. हाँ, तो व्हाट डू यू थिंक, किसकी पोरोसिटी ज्यादा होगी? क्ले की ज्यादा होती है, ग्रेवल की ज्यादा होती है? Sir, सिविल इंजीनियर आप अर्पित? sir, clay की ज्यादा होगी। व्हाट यू सेड इन केस ऑफ दिस? सर मैंने इसलिए शायद कंफ्यूजन में कह दिया, ट्रिकलिंग फिल्टर में जो होते हैं वो ग्रेवल्स होते हैं तो उसमें पोरोसिटी ज्यादा होती है, बट अगर आप स्पेसिफिकली उस सॉलिड पार्टिकल की बोलोगे तो शायद डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ओके। इफ्लोरेसेंस जानते हो क्या होता है ये? सर आपकी वॉइस बहुत लो है। इफ्लोरेसेंस, क्लोरोफॉर्म? इफ्लोरेसेंस अर्चित, इफ्लोरेसेंस। सर आई एम नॉट एबल। Just hold on, just give me a second, man. Just hold on. Yes, can you hear me now? यस सर, यस सर। मेरा क्वेश्चन है कि इफ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस सर आई डोंट नो सर। सर मतलब पता था, मैंने पढ़ा था, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। Why you are cramming the things, Archit? Have you ever seen efflorescence in the buildings, walls? देखिए ना, अभी आप लास्ट ईयर हो, लास्ट सेमेस्टर है आपका बीटेक का? लास्ट सेमेस्टर है सर। बच्चे ये तो बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं ना। बीइंग एन सिविल इंजीनियर, अगर आपने किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसका सॉल्यूशन क्या करोगे, क्योंकि पब्लिक बिल्डिंग में कॉमन प्रॉब्लम है इफ्लोरेसेंस का, जो व्हाइट से पैचेस होते हैं सर बट वो मतलब सिर्फ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर ब्रांच थी, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उस पे ज्यादा फोकस नहीं किया। वो फर्स्ट ईयर में जो बेसिक थे, वैसे मुझे पता होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, आप इन्वायरमेंट में ज्यादा कंफर्टेबल हो, इज इट दैट? यस सर। ठीक है, आप मुझे बताएं कि बीओडी और सीओडी क्या होता है और दोनों में क्या अंतर है? सर BOD is biochemical oxygen demand and COD is carbonaceous oxygen demand, and the biochemical oxygen demand is oxygen required by microorganisms to decay organic matter, and the chemical oxygen demand is when some chemicals require oxygen to decompose that organic matter. Earlier you said the carbonaceous. Yes sir. Both are same or they're different? Sir, biochemical oxygen demand is different and carbonaceous carbon oxygen. What you said, Archit, COD, you're saying is carbonaceous oxygen demand. After that, you are just came to this one, the chemical oxygen demand. Both are same or they're different? Sir, chemical oxygen demand, because chemical oxygen demand के अंदर carbonaceous and nitrogenous oxygen demand differ करेंगे। अच्छा, BOD 5 दिन पे क्यों निकालते हैं? Why this BOD is calculated at the 5 days period? Sir, because उसमें फिर organic matter decompose हो जाता है। Completely हो जाएगा? Completely नहीं होता सर। Okay. Okay, can you tell me, suppose हमें एक चैम्बर बनाना है, ब्रिक चैम्बर, and the waste is there, sewerage waste that we have. So what type of brick you will follow there? किस टाइप ऑफ ब्रिक को आप प्रीफर करोगे वो चैम्बर बनाने के लिए? Sir, I don't know sir. Okay. Can you tell me what is this IS code for the drinking water? Sir, for what parameter, like pH or? ड्रिंकिंग वाटर के लिए IS कोड बताना है, सिंपल। I just want to know which one code we are following. ड्रिंकिंग वाटर के लिए IS कोड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के पैरामीटर्स पे फॉलो करते हैं।
बताओ आपको कौन सा याद है, लेट मी चेक। So ISO 14000. नहीं कंफ्यूज मत हो अर्चित, बी काम। यहाँ पे जो Yeah. पर्पस आपको, जो आप मेन इंटरव्यू में गलती ना करो, यही है। तो कोशिश करो जो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, फिर उसका आंसर पार्ट डिलीवर करो, ठीक है। मैं क्वेश्चन फिर से repeat कर रहा हूँ अर्चित, कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका आईएस कोड क्या होता है। नंबर मैं जानना चाहता हूँ, विच वन कोड वी आर फॉलोइंग, जस्ट लाइक फॉर द आरसीसी IS 456-2000, that is the Bible for the civil engineering. Same drinking water का कोड। Sir, I don't know. ओके, ये पीएच अगर हम बात करते हैं, पीएच ऑफ वाटर, व्हाट इट बेसिकली टेल्स अस। So basically it tells us about the availability of hydrogen ions in that water and acidity and basicity for that. Okay, fine. If we talk about drinking water, then what should be the BOD value? What should be the BOD value? Drinking water का। Sir, actually मैंने environmental engineering revise नहीं करी है अभी। What you did? सिविल आपने पढ़ा नहीं है, एनवायरनमेंट आपने रिवाइज नहीं किया, you did then? Think about that one. Okay, so I think we can provide feedback to you. Yes, over to you, Tyagi sir. Okay, I think let's provide the Jatin sir first feedback. आगे sir. हाय अर्जित। Hello sir. सो एनवायरनमेंट में काफी वीक हो यार तुम। Yes sir. सर वो रिवाइज नहीं करा था मैंने, मैं- मेरे को लगा मैं HR का दूंगा थोड़ा सा भी, और इन नहीं मतलब रिवाइज देखो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप सिर्फ एक एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरव्यू को स्टडी नहीं कर सकते ना। आपका टेक्निकल जो आपका कोर एस्पेक्ट्स है, बिकॉज यू आर सिविल इंजीनियर, यू आर फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड ना, तो आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। सर आज रिवाइज कर पहले जो आपने सारा। कोई बात नहीं। तो जो आपने जो पोरोसिटी की बात की है, तो आप इनके बारे में देखिएगा, पोरोसिटी किसकी ज्यादा होती है। देखो, पोरोसिटी जो एक वर्ड है वो हमें बताता है वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स के बारे में। पोरोसिटी, अगर मैं बोलता हूँ कि हमारा जो गिवन मीडियम है वो ज्यादा पोरस है, मीन्स उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स किसमें ज्यादा मिलेंगे, ग्रेवल के अंदर है, क्ले के अंदर? क्ले में आपको वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स ज्यादा मिलते हैं। तो कौन ज्यादा पोरस हुआ? क्ले ज्यादा पोरस हुई। अगर क्ले ज्यादा पोरस है तो आप उसके अंदर ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं, ये बात अलग है। हम पानी को ड्रॉ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो पानी उस मीडियम में से फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये कौन बताएगा? ये मीडियम की परमेबिलिटी बताएगी कि मीडियम हमारा परमिएबल है या नहीं है। तो मीडियम के पास दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक परमेबिलिटी और एक पोरोसिटी। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी अर्चित मीडियम के पास है तो भी हम बोल सकते हैं कि हम उस पानी को विड्रॉ कर सकते हैं, और उसको एक्वीफर बोलते हैं। तो एक्वीफर की बेसिक प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि वो परमेबल भी होना चाहिए और पोरस भी होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? यस सर। ओके। सेकंड, मैंने पूछा आपसे नेम्स ऑफ एक्वीफर के बारे में पूछा था। एक्वीफर के डिफरेंट नेम्स, आपने कन्फाइंड एक्वीफर सुना है, अनकन्फाइंड एक्वीफर, यस सर। पर्च्ड एक्वीफर, याद आ रहा है? यस सर। वो तो ये एक्वीफर है। मतलब कोई बात नहीं, मतलब बहुत ही तो वो- टाइम गया तो इसलिए रिवाइज नहीं करा था। हाँ, इट्स ओके। अच्छा, एक आप बीओडी के बारे में बता रहे थे। बीओडी और सीओडी में डिफरेंस आपने बताया था कुछ, मेरे को बताना आपने क्या बताया था डिफरेंस? So biological oxygen demand is when oxygen required by microorganisms to decay that organic matter. To decay the organic matter. And what is COD? COD is when chemical decompose that organic matter. Chemically decompose organic matter. Okay. Yes, sir. So in that case, in both the cases, we are decomposing organic matter, right? Yes, sir. Okay. If in दोनों केसेस में अगर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहा है अर्चित,
तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम करते क्या फिर? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर, सेकेंडरी अच्छा, ट्रीटमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिक मैटर, कौन से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होते हैं? ऑर्गेनिक मैटर आई डोंट रिमेम्बर। चलो कोई नहीं। तो आप ये बताइएगा, बस एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, बीओडी और सीओडी में सिग्निफिकेंस किसका ज्यादा होता है? बीओडी का। वाई? बिकॉज बीओडी भी आपको ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी दे रहा है और सीओडी भी ऑर्गेनिक मैटर की जानकारी दे रहा है, तो बीओडी वाई इज मोर सिग्निफिकेंट? सर सब रिवाइज करना पड़ेगा मुझे, भूल रहा हूँ। या बहुत रिवाइज करना पड़ेगा आपको। चलो, एक्चुअली होता है क्या है अर्चित कि बीओडी जो हम निकालते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है बायोडिग्रेडेबल की। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बीओडी बोलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और टोटल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम सीओडी बोल देंगे। डिफरेंस समझ आया? तो हमें डिकम्पोजिशन करवानी है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की। क्यों करवानी है डिकम्पोजिशन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की? बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो इससे सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाते हैं। अगर हमारे सिस्टम में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो हमारे सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएगा। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो ये उस जगह की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और हम नहीं चाहते कि ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करे। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है फिशेस के एक्वेटिक लाइफ के सर्वाइवल के लिए वो 4 ppm होनी चाहिए ऑक्सीजन की। यस सर। ठीक है, तो अर्चित मैंने तुमको जो आइडिया बताया है, आपको बहुत कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है अभी एनवायरनमेंट को अच्छे से, क्योंकि आपका बेसिक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट है। ओके ओके सर। विक्रम सर अभी आप सर जैसे 10 हाँ मिनट्स जी बोल। वो होगा इंटरव्यू, तो उसमें लार्जली टेक्निकल जाएगा या फिर एचआर, या फिर कुछ प्रेडिक्ट वो नहीं कर? आपका दो नहीं, वो आप देखो, प्रेडिक्ट तो कुछ नहीं कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर पे वो क्या पूछने वाला आपसे। ठीक है, तो आपको तो तैयार दोनों के लिए होना है, एचआर के लिए भी होना है और टेक्निकल के लिए भी होना है। आपको बस ये सोच के चलना है कि मुझसे जो पूछा जाए तो मैं उसमें अपना कॉन्फिडेंस शो करूं। बाकी आपको विक्रम सर बताएंगे, अभी त्यागी सर भी आपके साथ है, वो भी आपको बताएंगे। त्यागी सर। अर्चित, यस सर। देखो 10 से 15 मिनट के इंटरव्यू में क्या क्या कंटेंट हो सकता है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, क्यों ज्वाइन किया एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, क्यों आए तुम इस फील्ड में, ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आगे का प्लान, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा, तुम्हारी हॉबी क्या है, तुम्हारी वीकनेस, तुम्हारी स्ट्रेंथ, 1 वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब करो। ठीक है, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 वर्ड। ठीक है, इस तरीके की चीजें, कॉमन चीजें मतलब ये पूछी जाती हैं। फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं। ओएनजीसी के बारे में, ओएनजीसी को वेबसाइट पे जब तुम जाओगे तो जो भी तुम्हें इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको देखो एक बार। ओएनजीसी के क्या प्रोडक्ट हैं, क्या काम करती है, और उसके ज्वाइंट वेंचर, ठीक है, कौन कौन से सब्सिडरीज, कौन कौन सी ओएनजीसी की किस मिनिस्ट्री में आती है। ठीक है, और रिसेंट अपडेट्स इसके बारे में, उसके ऊपर कुछ पूछ सकते हैं। और एक क्वेश्चन को ज्योग्राफी का भी पूछ लेते हैं कई बार ना। ओके सर। जैसे तुमसे पूछ लिया जाए, मान लिया कि भाई एक विशाखापत्तनम रिफाइनरी है, तुमने सुना होगा, एचपीसीएल की रिफाइनरी है, तो बताओ विशाखापट्टनम किस स्टेट में आता है? अच्छा, बताओ। कर्नाटका। हाँ, तो बस वही निगेटिव चला जाएगा मामला। इंडिया का मैप, इंडिया के सारे स्टेट्स, ठीक है, सराउंडिंग और समुद्र के जितने भी, समुद्र के अंदर जो भी हमारी लोकेशंस हैं उनका थोड़ा आइडिया ले लो अच्छे तरीके से ना। सर कौन सा इनकी जो स्टेट किसकी टच कर रहा है, इनकी जो साइट्स है वो देख लो। बताओ। दिल्ली मैप देखो, मैप वेबसाइट तो देखना, मैप इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप। मान लिया पूछ ले तुमसे तमिलनाडु कौन कौन से स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, बताओ। तो ज्योग्राफी में मैप जरूर पूछा जाता है हमेशा। वो तो और सर तुम्हारे एनवायरमेंट में जो इंडिया के अंदर जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं कोई, समझे ना।
उसके अलावा जो रिसेंट में कोई भी बड़ी त्रासदी होती है, जैसे जैसे अभी वहां पे टर्की में भूकंप आ गया या कहीं पे फ्लड आ गई, उनके हम्म। बारे में तुमने कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई स्टडी तुम करते हो क्या? कुछ भी इस तरीके की चीजें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में तुम और क्या करते हो अदर देन टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा? तो सर इसकी न्यूज़पेपर अवेयरनेस, पढ़ता सर। हाँ जो भी पढ़ते हो मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके सर, ओके। ओएनजीसी का वर्क कल्चर तुम्हें पता है कि नहीं पता है? 14 सर दिन मतलब 14 दिन बाहर वाला सिस्टम, 15 days off, 15 days work. Yes हाँ sir. तो ये सब तैयार करो जो मैंने बताया। हम्म। किस मिनिस्ट्री में आता है, कौन कैबिनेट मिनिस्टर है, इसके डायरेक्टर कौन है ओएनजीसी के, इन सब के देख बारे लिया में सर। देखो। ये जनरल हो गया। और ओके। बाकी जो तुम्हारे ये जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है ना, और ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबके बारे में थोड़ा देखो क्या होते हैं, जो रिवाइज कर लो सब चीजों को, वहां पे डिस्क्राइब करना है ना तुम्हें मेनली। यस सर, यस सर। एक तो होता है कि हमें पता है दिमाग में हमें, एक होता है हम एक्सप्लेन कैसे करें, तो एक्सप्लेन करने की प्रैक्टिस करो इन चीजों को सबको, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ चलो, इतना काम कर लोगे तो तुम्हारे चांस बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। और टेक्निकल में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन पूछ सकते हैं 2-4 क्वेश्चन तो जरूर। ओके सर। सर टेक्निकल में ही थोड़ा अभी मैं रिवाइज कर लूंगा, वो तो ओवरऑल चेक करना। ओवरऑल सर, जैसे और भी प्रोटोकॉल्स वगैरह, कन्वेंशंस वगैरह हैं, या फिर ओएनजीसी से रिलेटेड है, वो देख लिया था मैंने। एचआर से रिलेटेड करा था मैंने। अभी टेक्निकल में आज रिवाइज कर लूंगा, आज और कल। बस हो जाएगा। और सर एक और बात पूछनी थी सर, जैसे मैं फाइनल ईयर और में हूँ। डीटीयू में तो डीटीयू का तो सिलेबस भी कई जगह यूज होता है ना एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एग्जाम्स में। यस सर, सेंट्रल पोल्यूशन तो कंट्रोल बोर्ड में हुआ था। हाँ हाँ, थोड़ा क्या सिलेबस है तुम्हारा? सर आई थिंक मेरा नेट स्लो है। विक्रम सर, विक्रम सर। हेलो। यस अर्चित। यस सर। अर्चित, यस सर, यस सर। बच्चे अभी आपको ना वैसे टेक्निकल, आपका कब है इंटरव्यू? 5 तारीख को है। यस सर, 5 मार्च को। आप टेक्निकल के ऊपर भी फोकस कर लो ना। यस सर। हाँ, बेसिक बेसिक सी चीजें उसके ऊपर आप बहुत सारे स्नैप्स एनवायरनमेंट के ऊपर है ना। पैनल पे ना बहुत सारे स्नैप्स पड़े हैं। अगर आपको ये पता नहीं चल क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है, तो एक बार आप स्नैप्स को गो थ्रू कर लो। डेफिनेटली यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम देयर। यस सर, रिवाइज करने पे मुझे कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा, बट वो ना काफी टाइम हो गया था इसलिए। ठीक है, बाकी इतना कोई बड़ा फ्लॉज नहीं, लेकिन आपने अभी टेक्निकल मेरे ख्याल से एक ही आंसर किया था, आपने डेफिनेशन बताया था। सर मैं समझ सकता हूँ, टेक्निकल में तो मतलब बिल्कुल जीरो ही मान सकता हूँ मैं। नेगेटिव में ही हो गया वैसे वो। आपको ना बैलेंस करके चलना है। See, if someone is asking something very basic from you and he and she is expecting कि आपको कुछ आती है ना, तो एटलीस्ट अगर आपसे कोई बेसिक पूछा यस रहा है ना, तो आपको बताना आना चाहिए। अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा उसने डिजाइन का टर्म पूछ लिया, कोई ऐसा टर्मिनोलॉजी पूछ लिया जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर भी वो समझ में आता है, वो नेगोशिएट हो जाता है। लेकिन बेसिक चीजें हैं, अगर आपसे पूछी जा रही है ना, तो बहुत ज्यादा एक ग्रेट इम्पैक्ट करेंगे आपके इंटरव्यू। सर जैसे आईएएस जैसे कोड आपने पूछा, तो वो कोड मेरे को याद नहीं था। बात ये थी ना, वो बेसिक ऐसे रिमेम्बर नहीं रहता। वो 10,500 है IS 10500। पानी तो डेली पीते हैं यार। हेलो। यस यस अर्चित, TDS कितना होना चाहिए, सस्पेंडेड सॉलिड क्या होना चाहिए, pH कितना होना चाहिए, कौन सा कोड है, ये तो पता होना ही चाहिए ना। दिस इज नॉट अ बीइंग एन सिविल इंजीनियर, नॉट बीइंग एन एनवायरमेंटल सर इंजीनियर। उसके पैरामीटर्स, परमेबिलिटी वैल्यूज तो मतलब वो पता है, परमिसिबिलिटी वैल्यूज तो पता थी BIS के अकॉर्डिंग जो होती है, बट वो ये एक बार रिवाइज करना तो है ही। मैं वही बोल रहा हूँ, रिवाइज करो, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी आप जो डिलीवरी पार्ट है आपका वो सही है ना, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा हड़बड़ा रहे हो, है ना। एक दो जगह मुझे लगा था आप थोड़े से नर्वस हुए थे, है ना, लेकिन ठीक है, वो ज्यादा आप नर्वस नहीं दिखे थ्रू आउट दिस सेशन, ठीक है।
और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यही है कि आंसर ना देते हुए भी आपने वो चीज मेंटेन करी है। दैट्स गुड। सर फोकस। सर एक बात और पूछनी थी, जैसे मैं फाइनल ईयर में हूँ तो मैं शायद मैं यंगेस्ट हूँ या फिर उसमें ना वो देते हैं काइंड ऑफ एमटेक वालों को या पीएचडी वालों को, तो मेरे को लीस्ट प्रेफरेबल करेंगे ना वो? अपने आप मत सोचो। नहीं मतलब आप मैं नहीं सोच रहा, बस एज अ रैशनल थोड़ा सा पता होना चाहिए ना, फिर भी ऐसा होता है वैसे? अगर उसमें मेंशन किया गया है कि ओएनजीसी का जो ये रिक्रूटमेंट है, अगर उसमें कुछ ऐसा प्रायोरिटी दिया हुआ तो डेफिनेटली विल बी देयर। तो नहीं दिया गया है ना, तो डेफिनेटली नो डाउट सभी को इक्वल वेटेज दिया जाएगा, भूल जाओ ये। नहीं वो सर मैं तो अपना 100% ही दूंगा, बट फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए ना कि मतलब ऐसा है कि नहीं। There is written कि there is a weightage for this higher qualification guys, or if he and she having experience, he is having the more weightage. Is there anything else like that one? No ना। हम्म। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता वहां पे, यस सर, ओके सर। ठीक है। उसके लिए वो अलग से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं ना, अगर उनको हायर वाले चाहिए होते हैं डिग्री वाले तो। यस सर। पीएचडी की अलग से निकल जाती हैं, एमटेक की निकल जाती हैं, बीटेक वाले के लिए सबके लिए एक जैसा है, ठीक है। They will just mention कि जिसका हायर क्वालिफिकेशन होगा वो प्रीफर किए जाएंगे। They will mention each and everything. Don't pre-assume the things by your own. That I'm saying, है ना? यस सर। Focus. Okay, then all the best and keep preparing, keep learning. Yes, sir.